اصل دے اس ٹائم 42% 42% بجلی کے بلاں میں اضافہ ہو گیا جس کی وجہ تو لوگ بہت سخت پریشان ہیں. دیکھا جلے گھرے دے سسٹم چلانے واسطے بھی بہت اوکھا کام ہو گیا. تو اتنے وقتی طور پہ جڑی حالات بنے دے لوگوں کے گھرے دے تے انہوں دے سسٹم سمجھ نہیں آتا انہیں. تو بجلی دے جڑے مہنگائی ہوئی ہے 42% دی اس دیکھتے ہوئے اصل دی عوام کے آختی ہے اسی تساں وزٹ کرانے ہیں ٹباد بزارے دا. تے یہ میں گل کرنا یہ میرے برہان انہوں کا نام کہ احتشام نام ہے. احتشام صاحب تسی کے آختے ہو بجلی کے بلاں کے بارے میں تساں کا کی رائے ہے اور سسٹم کی جو چل رہا ہے تساں کا اخراجات کی جو پورے ہیں اس کے بارے میں گل کریں. اس ٹائم موجودہ حکومت جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کر رہی ہے یہ نہایت افسوس ہے. اتنا زیادہ بل 5,000 بل آتا ہے جس میں 4,000 روپے ٹیکس لگایا جاتا ہے. میری حکومت سے اپیل ہے کہ خدارا ہم پہ تھوڑا سا رحم کھائیں. اتنے زیادہ بجلی کے بل عام بندہ نہیں دے سکتا تو اتنا زیادہ ٹیکس نہ لگائیں. دیکھیں اب کرونا کے بعد پہلی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بجلی کے بل پہ بھی بہت زیادہ گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے. تو حکومت سے میری گزارش ہے کہ کچھ غریب عوام پہ رحم کرے اور بجلی کے بل جو ہے وہ تھوڑے سے کم کرے. سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بل کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی وابڈا کے بلوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو کہ انہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں 42%؟ سر میرا نام محسن ہے. جی جی. اور اس کا نام کیا ہے وابڈا والوں نے انتہائی تو بہت کیا ہوا ہے کہ بہت ہی ظلم کر رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ یہ ظلم کس قسم کا کر رہے ہیں یہاں پر؟ بل بھیج رہے ہیں, اتنے آتے ہیں بل چیل اوپر نیچے آتے ہیں ورنہ آگے لوگوں کے اتنے حالات وہ ہوتے ہیں کہ بندہ سہ نہیں سکتا. اور یہ اس کی کرپشن خود کرتے ہیں اور غریب عوام سے نکالتے ہیں. سر تو آپ عوام سے یا گورنمنٹ سے یا وابڈا والوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وابڈا والوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ کرپشن کرتے ہیں. کرپشن اگر وابڈا نہیں ہے تو اس سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی عوام کو اور ان سیاستدانوں کو ان وابڈا کے دفاتر کو اور پران انہوں کو پوچھنے ہیں کہ وابڈا کے بارے میں جڑے 42% بل انکریز کیتا ہے نا تے نال ٹیکسز لگے دیں اس کے بارے میں انہوں کی کی رائے ہے تے معلوم کرنے ہیں. یہ دیکھو اصل برا گل کر دیں. سب تو پہلے تو بجلی کا بل پچھلی دفعہ ساڑھے کو آیا تقریباً 10,000 کچھ 100 روپیہ آیا نا. ساڑھا ویسے بل آتا ہے 4,500 5,000 کی رینج میں. تو اس میں پتہ لگا کہ ٹیکس وغیرہ نہ کوئی لائے گئے سا ہے. چلو ایک آدھ دفعہ کی ٹیکس ہی ہے وہ اس دفعہ پھر میرے کو بل آئے تھے وہ بھی تقریباً میں خیال ہے 11,000 کوئی 100 روپئے اس میں تو کتنا ٹیکس لگے گا؟ اس میں میرا ٹیکس لگے تھے سر بل آیا تھا 11,290. میرا ایکچوئل پرائز بل وہ 5,095 روپئے. اس نے اکاؤنٹ 100 روپئے ٹوٹل بل تھی 11,290 روپئے نا. یعنی کہ بل تو زیادہ ایکسٹرا ڈبل بل تو ٹیکس لگے گا. 5,000 بل تھے اس کے 7,000 روپئے ٹیکس ہے 7,200 ٹیکس. اس کے بارے بھی تھی وابڈا والے کی گل کرتے ہیں اصل سیاستدان کے بارے میں کی کرتے ہیں کہ جو واقعہ نے قصور تھے اس قصور سارے سیاستدانوں نے ہی ہے کہ واپس تو کل دن پہ لگے رہے تھے غریب عوام کا یہ بیمار خراب ہو رہی بیمار خراب ہو رہی بنا کسی جاتے سے صفائی ہوئے ہر چیز یہ ٹیکس وغیرہ ختم کیتے چلو غریب عوام اتنا ٹیکس 7,000 روپئے ٹیکس ہو سی نہیں دے سکتا. اس کے بارے میں تھی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اس سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ شہباز شریف صاحب پہلے عمران خان دور آتی رہا چور وہ آتی چور مطلب انہوں نے حکومت آ گئی وہ کچھ کر کے دسو کسی دیکھے گا کہ نا ٹھیک ہے سال تو 5,000 روپئے 12,000 11,000 روپئے کیا اگر آ گئے اس مقصد نہیں حکومت نہ ہے انہیں چاہیے کہ حکومت اگر کرنی جیسا انکریز نہ ہونے دو. تھی کیا سمجھتے ہو اس میں کتنی ریلیف ہونی چاہیے کہ تھی لوگ ایزی اپنا کام کر رکھیں؟ سر پہلے سب تو پہلے جو گل ہے کہ یونٹ ہے نا وہ 3 روپئے کوئی پیسے کی کمی کی گئی نا. تو دوسری چیزیں میں کہ مثال ٹیکٹ نا پہلے آنا چاہتے یونٹ ہے نا بتا سکتی. اس چیز ہے کہ یونٹ اگر بڑھ گئی ہے باقی ٹیکس نہ لو غریب عوام اتنا افورڈ نہیں کراتی جی یونٹ وہی لاؤ باقی ٹیکس نہ لاؤ. باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے ہی ہے. ایسے کوئی کپڑے آنے کوئی چیز بھی ہے تھی اگر کھانے شے کرتے ہو اس میں دیکھا ٹیکس ہے ہی ہے.
कैंट प्लाजा जो बोलने असां बिल पहले आंदा सा 2500 3000 क्यों देखो 4041 रुपया बिल आंदा किस गले दा 1400 पर टैक्स लाई दी पूरा सी आटा चीनी का पूरा करा या ना बिल पूरा करा कार ऐसा कोई खाने बिजनेस आटा चीनी पूरा नहीं होता तो बिल ऐसी कितों जमा कर और एक हुकूमत से गुजारिश है कि टैक्स घटाओ माफ़ करवाओ बिल के आ रहे 1500 रुपये दो टैक्स किस गला दा लाई देनी 1500 रुपये टैक्स ये ऐसी गरीब आवाम है तो ये ऐसा गुजारा नहीं होता पेट सारी रिजक लगे तो रिजक खराब ना करो ये ऐसा तो खाना पीना रिहाइश ये चीज़ें भी नहीं पूरी होनी तो इसलिए बिल कितों पूरा कर सकते अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम आदिल है जी। मैं कैंट प्लाजा का एक छोटा ताजर हाँ तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सा कि खुदारा ये बिजली के बिल जोड़े हैं इन्हें जो इजाफी टैक्स लग के आना है वो खुदारा हटाया जो ले गरीब आदमी पहले तीसरे महंगाई की वजह तो अज जो हालात जा रहे मुल्की हालात जा रहे टैक्स असी हर चीज़ पे पे कर रहे हैं किस चीज़ पे टैक्स ना पे कर रहे सब चीज़ों में टैक्स पे कर रहे हैं उसके बावजूद इजाफी टैक्स साढ़े तो हटाया जो ले असी गवर्नमेंट ना दरख्वास्त कर सा यार इस टैक्स हटाया जो ले वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने असी रिक्वेस्ट कर सा खुदारा आवाम नाल जुल्म ज्यादती बंद करो और इस टैक्स हटाया जो ले ताकि गरीब आदमी अपने घर का जो राशन पानी है उस पर तवज्जो देवे बिला तो तवज्जो हट जो जी मैं फारूक अहमद सिद्दीकी कैंट प्लाजा से मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ये बिजली के टैक्सेस की वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के बहुत ज़्यादा बिल भेजना शुरू कर दिए हैं और ये वापडा के सरफीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और बिल जो हैं वो सही तरीके से प्रॉपर्ली कम भेजें ताकि ओरिजिनल के प्राइसेस कम करें ताकि लोग आराम से बिजली के बिल पे कर सकें। निशान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार शफकत है जी। मैं कैंट प्लाजा शॉप नंबर 29 से बोल रहा हूँ। इस दफ़ा जो हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में ज़ुल्माना टैक्स लगाए हैं मैं इसको रद्द करता हूँ और फिलफौर हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि जो ये टैक्स लगाए गए हैं ये दुकानदारों के ऊपर ये फिलफौर वापस लिए जाएँ क्योंकि एक तो माशी कत्ल है हमारे कारोबार कोरोना की वजह से और इस तरह हमारे कारोबार बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो खुदारा इन बिलों का देखें ये देखें बिल आए हुए हैं ये 10,000 रुपये बिल आया हुआ है 10,185 रुपया बिल आया हुआ है। मुझे ये बताएं कि सुबह हम 10:30 बजे आते हैं और 8 बजे शॉप बंद कर देते हैं और इतना ये 282 यूनिट टोटल इसके जले हुए हैं 282 यूनिट और इनके ऊपर सेल टैक्स वगैरह लगा लोगों के ये 10,158 रुपया मेरा बिल आया है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा ही नहीं आया पूरे कैंट प्लाजे का ये हाल है पूरे अब्टाबाद का ये हाल है। खुदारा इस पे आप ज़रा हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि गौर करें। ताजर बिल्कुल पिस के रह गए हैं। ताजर एक रीढ़ की हड्डी होती है। खुदारा इनसे ही वाबस्तगी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की वाबस्तगी हमसे है तो कुछ हमारे ऊपर रहम करें। खुदा अस्सलाम वालेकुम। कैंट प्लाजे में मेरी दुकान है अली मान के नाम पे ये मेरे दोस्तों जी इनका बिल आया है 44,011 रुपये 274 यूनिट जिस उत्ते अस माशाल्लाह वापटा दे सरकारा सो माशाल्लाह बहुत अच्छे और पाकिस्तान हुकूमत 12,991 रुपये सेल टैक्स लाया है। ये बेचारे 400-500 रुपया ये इन्होंने बेचारा ने काम दसिया ने जी डैडी बिच एक सूट है बेचारे सीट दें उस 400-500 रुपये सिलाई के अंदर तो मैं ये नहीं समझ आती कि हुकूमत असन की जी है 12,991 रुपया टैक्स ला के इन्हों का बिल 44,011 रुपये किस हिसाब से किया है 274 यूनिटा का। ये बेचारे दिहाड़ी पे 500 रुपये की मजदूरी करते हैं या टैक्स पर सुन या ये दुकाना के किराए दे सुन या बेचारे आप करें हैं कोई खर्चुन असें तो ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत आसी बेहतर हुकूमत आसन तो कोई रिलीफ अवाम देते सी अगर इस तरह का ही रिलीफ अवाम देना है तो इसको बेहतर तो असा तो अमरीयत ही आवे ना असा जमहूरीयत तो क्या करना है कि अगर जमहूरीयत में लोग बिजली के बिल इस तरह देवन आटे लैना बेच खल के 2,000 रुपये के किनौन चीनी महंगी करके नौन तो ये जी जमहूरीयत को तो असी अमरीयत भी ठीक हाँ असा तो किसी किस्म का जोड़ा है अस अपनी हुकूमत तो
दरखास्त करने कि कम अज़ कम ये हाथ हल्का रखो। आप भी सियासी तुसां दी जेह्ड़ी गहमा गहमी है लगे रहो बेशक, पर कम अज़ कम गरीब दी आवाम ते भी कोई तवज्जो दो कि उन्हां दे हालात देखो। तुसां बेहतरी दी बजाय गरीब होते वो 10-15-20 हज़ार रुपये इनकम वाले बंदे होते तुसें 44-44 हज़ार रुपये का बिल पा के इनसो तो ये अपना कोठा बेच के देसी उल्टा तुसा अपने जुल्म कर दो। तो इस वास्ते मैं दरखास्त कर सा अपने वज़ीर आज़म साहब को भी तो अपनी हुकूमत पे भी आखसा कि इन चीज़ों पर नज़रसानी करो। सियासी गेमा गेमी तुसां दी अपना होवे तुसें लगे रहो, पर कम अज़ कम गरीब वास्ते कुछ इस तरह का करो कि उस रोटी खाने जोगे बच्चों पढ़ाने जोगे उस कोई चीज़ होवे। इस तरह के तुसें मामलात कीते ते ये लोग ना बच्चों पढ़ा सुन, ना रोटी खा सुन, ना अपने मामलात कर सुन। तो मेहरबानी करके फिर एक बारी दरखास्त अपनी हुकूमत को कर सा इन चीज़ों पर नज़रसानी करो, थोड़ा गरीब होते हाथ ओला रखो। जज़ाकल्लाह। सर असी कैंट प्लाजा विच दुकान है साड़ी ते साड़ा बिल आंदा है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, ज़्यादा तो ज़्यादा आंदा है। इस दफ़ा 72 यूनिट का बिल आया 3800 रुपये, जोड़ी कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, जुल्म की इंतहा है कि असी गरीब दुकानदार हाँ, असा इतना अफोर्ड ना कर रखते, इतना प्रॉफिट नहीं, मार्जिन नहीं, किराए भी ज़्यादा दुकान दी और तो बिल तो बिजली वाले बहुत ज़्यादा मचाए थे कि बहुत ज़्यादा बिल आते थे साढ़े। इस खातर असी हुकूमत के इल्तमास कर सा कि कोई इंसाफ करो साढ़े नाल। अब 6 किस्म के टैक्स लाए दिन ने जबकि असी ऑलरेडी टैक्स देने हर किस्म का, तो इस खातर तो कोई मेहरबानी करो साड़ा बिल मुनासिब आवे ताकि। जाकिर है जी, मेरा बिल बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आया, पिछली बार आया 11,000 रुपये, इस दफ़ा आया जी 11,500 रुपये। इतनी आमदन नहीं सड़ी, लेकिन क्या करें मजबूर है। लेकिन कुछ समझ नहीं भी आती, साढ़े कारोबार भी उस तरह की नहीं जी, पहले कारोबार होंगे हैं, हालात भी उस तरह के नहीं रहे, लेकिन परेशान ना कुछ समझ भी नहीं आती। ये दुआ करो कि अल्लाह पाक सारा सबक उन्हें हदायत देवे बिजली वाले, असी यही आह कि मैं तलहा हूँ, तलहा गारमेंट्स का ओनर है। तो पिछले भी 2-3 मरतबा साढ़े बिलों में काफ़ी टैक्स लग के आए, तो उसी तरह इस मरतबा फिर साढ़े बिल भी देखो तकरीबन 5,000 रुपये टैक्स लगे थे। जोड़ा साढ़ा बिल आंदा है 8-10 हज़ार, इस मरतबा 16-17 हज़ार बिल आए थे। साढ़े अगे भी जिस पता है गरीब ताजर हैं, साढ़े एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब इनकम तो पता है अजकल नहीं, तो लड़के के खर्चे होने, दुकान का काफ़ी खर्चा है, तो जिस वजह तो असी गरीब ताजर काफ़ी परेशान है। और टैक्स भी ना किस चीज़ लाए दिन बिल्कुल समझ नहीं आती, जिस चीज़ तो असी बड़ा काफ़ी परेशान है। तो ये हुकूमत चाहिए कि साढ़े नाल इस चीज़ का कुछ साढ़े अगे हल कड्ढन कि मतलब किस चीज़ का टैक्स है। पहले भी 2-3 मरतबा लग के आ चुके हैं, लेकिन असा जमा कराएं कि चलो शायद उन्हें पिछले भी ऐलान किया है कि उन्हें ना वो सुन, लेकिन इस तरह फिर उसी तरह टैक्स लग के आए। इस मरतबा फिर 5,000 रुपये टैक्स है, जोड़ा बिल साढ़ा आना उन्हें 7-8 हज़ार, वो इस मरतबा 15-16 हज़ार डबल है। काम करो बाद ही नहीं तो सामने में के हालात हूँ, तो उस वजह से इस चीज़ का लाजमी कोई रिलीफ दिता जुले कि इस चीज़ के किस चीज़ के टैक्स उसका कुछ दसा जुले लाजमी। नाम इशफाक अहमद है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और इंतहाई गरीब बंदा हूँ। मेरे घर के जो बिल आ रहे हैं, पहले 1500 बिल था, 1000 था, अभी वो 8,000, 10,000, 12,000 बिल आ रहे हैं। क्यों? कितने टैक्स उन्होंने, आप लोगों ने टैक्स गवर्नमेंट ने इतने लगा दिए, हम क्या करें? हम गरीब हैं, हम 20,000 तनख्वाह लेने बंदे हैं, क्या क्या हम करें इसमें? आप मेहरबानी करें, हम पे भी रहम करें, गरीब लोग हैं हम, ये या कोई घर में कोई खाएंगे या बिल देंगे, आप मेहरबानी करें। सुना आवाम कितनी तंग है और किस तरीके से परेशान है, तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से एक रिक्वेस्ट है, हम इल्तिजा कर सकते हैं कि जनाब हमारी आवाम के लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकालें, और ये जो इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगाए हुए हैं, इनसे बराए मेहरबानी हमारी जान छुड़ाएं, ताकि हम अपने घरों के सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चला सकें। मज़दूर तबका इसमें दब कर रह गया है, जिसको घर में जो 1,000 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, वो शाम को अपने घर के अंदर एक राशन पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई का आलम वो है कि जहाँ पर 550 रुपये का एक घी का पैकेट हुआ है, वहाँ पर वो एक घी का पैकेट लेने के लिए उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो इस बारे में देखते हुए जनाब वज़ीर आज़म साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे तवासत से या पाकिस्तान की आवाम की दाद रसी सुनते हुए इसको प्रॉपर तरीके से देखें और हम पर टैक्स के बोझ कम किए जाएं, ताकि हम आसानी से अपने घर को सर्वाइव कर सकें।